In this lecture, I will discuss deadlock. A most common problem occur in operating system. In this topic, we will see what is deadlock and what are the techniques to remove deadlock in operating system. What is deadlock? Suppose that there is two process 1 and process 2. Process 1 requires two resource 1 and resource 2. Process 2 also require two resource 1 and resource 2 to complete the process. In this precedence graph, this is the resource 1 which is assigned to a process 1, and this is resource 2 which is assigned to process 2. Initially resource 1 is allotted to process 1 and resource 2 is allotted to process 2. Now resource 1 is available to process 1, it is holding the resource. So after performing the resource, after using the resource 2, process 2 also require resource 1, so it is waiting for resource 1. But process 1 is busy in with the resource 1. At the same time, process 1 also need resource 2 to complete its process. In this way, process 2 is in waiting for resource 1 and process 1 is in waiting for resource 2. But process 1 is resource 1 is held by process 1 and process 2 holds the resource 2. Hence, there is a waiting stage, circular waiting stage, and this create a deadlock. No process will complete its process in a certain time. So the definition is a set of process are said to be a deadlock when every process in the set wait for an event that can be caused by another process in the set. What are the event here? First event, process 1 is waiting for resource 2 to be released. This is first event. And second event is process 2 is waiting for resource 1 to be released. That means process 1 is waiting for resource 2, that is occurred by another that should be the release will be done by other process, that is process 2. Similarly, process 2 release of the resources will be done by the process 1. In this way, one process is dependent on another process. This will create a deadlock. So the definition is a set of process are said to be in deadlock when every process in the set waits for an event that can be caused by another process. इसका मीनिंग ये है कि अगर एक सेट ऑफ प्रोसेस है वो डेडलॉक में चला जाएगा कि अगर प्रोसेस एक सेट ऑफ प्रोसेस दूसरे कोई इवेंट के लिए वेट कर रहे हो, जो इवेंट दूसरा प्रोसेस के द्वारा जनरेट किया जाएगा, वो इवेंट के लिए वो इवेंट के लिए अगर वेट करता है तो सभी प्रोसेस इस डेडलॉक स्टेट में आ जाएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेडलॉक. Deadlock characterization. Deadlock can arise if four conditions hold simultaneously. What are the four conditions? First is mutual exclusion. Mutual exclusion means only one process
at a time can use the resource. Suppose that मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि एक शेयर्ड वेरिएबल्स को कोई एक प्रोसेस ही मॉडिफाई कर सकता है। अगर मान लीजिए कि क्रिटिकल सेक्शंस में बहुत देर तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस उसमें एंटर नहीं कर पाएगा और दूसरा प्रोसेस को रिसोर्स भी नहीं मिलेगा, तो इस तरह से वेटिंग स्टेज में चला जाएगा और दो प्रोसेस 2 जो वेट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शंस के लिए, उसको अलाउ नहीं मिलेगा। दूसरा जो कैरेक्टराइजेशन है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या होता है कि ए प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्सेज इज वेटिंग टू एक्वायर द एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में था, जो प्रोसेस 1 होल्डिंग द रिसोर्स 1 एंड प्रोसेस 2 होल्डिंग द रिसोर्स 2, और इसी समय में प्रोसेस 1 को रिसोर्स 2 भी चाहिए और प्रोसेस 2 को रिसोर्स 1 भी चाहिए। तो इस तरह से एक प्रोसेस कोई रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और दूसरा रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हो, तो ये हो गया होल्ड एंड वेट सिचुएशन, और ये ऑकर होगा, तो ये वन ऑफ द रीजन फॉर डेडलॉक। नो प्रीएम्पशन, that means a resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task। जैसे कि नो प्रीएम्पशंस शेड्यूलिंग में हम लोग देख चुके हैं, जब तक वो प्रोसेस टोटल टाइम एग्जीक्यूट नहीं करता है तब तक वो रिसोर्स को रिलीज नहीं कर सकता है, तो ये हो गया नो प्रीएम्पशंस। अनलिमिटेड टाइम के लिए अगर कोई प्रोसेस उसको होल्ड कर रहा है तो ये दूसरे प्रोसेस उस रिसोर्स को ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा, इस तरह से वो डेडलॉक में जा सकता है। सर्कुलर वेट, it is generated from hold and wait states. It is the extension of hold and wait state. Circular wait में जैसे कि if there are set of process P0, P1, P2 to n processes of waiting such that P0 is waiting for resource that is held by P1 and P1 is waiting for the resource that is held by P2 and Pn minus 1 is waiting for the resource held by Pn. In this way, the P0 is waiting for the resource held by Pn is waiting for the resource held by P0. इस तरह से एक सर्कुलर वेट का सिचुएशन आ जाएगा, मतलब P0 is dependent on P1, P1 is dependent on P2, P2 is dependent on P3 and so on. Last में क्या होगा, Pn is also again dependent on P0, तो ये एक सर्कुलर वेट सिचुएशन है, तो ये इसके लिए भी डेडलॉक हो सकता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक साथ ऑकर हो जाएगा, देन 4 कंडीशंस अगर एक साथ ऑकर हो जाएगा तो डेडलॉक जनरेट होगा।
सिस्टम मॉडल, ये सिस्टम मॉडल क्या है? सिस्टम मॉडल, अगर their resource type is R1, R2, Rm. The resource may be CPU cycle, memory space, IO devices, etc. Each resource type Ri has Wi instances. मान लीजिए कि रिसोर्स एक रिसोर्स है, जैसे मान लीजिए टेप ड्राइव मान लीजिए कि 2 लगा हुआ है, तो इसका इंस्टांस हो जाएगा 2. तो रिसोर्स टाइप यहाँ पे हो गया टेप ड्राइव, और WI हो गया इसका इंस्टांस मतलब कितना ये अवेलेबल है. जैसे 2 टेप ड्राइव है तो इसका इंस्टांस हो जाएगा 2. इसी तरह से अगर डुअल कोर प्रोसेसर है तो रिसोर्स टाइप हो जाएगा प्रोसेसर, और इंस्टांस हो जाएगा, नंबर ऑफ इंस्टांस हो जाएगा 2. इस तरह से रिसोर्स टाइप और इंस्टांस 2 अलग अलग एलिमेंट्स है. एक रिसोर्स का बहुत सारे इंस्टांस हो सकता है, एक भी हो सकता है और बहुत सारा भी हो सकता है. ये जो सिस्टम मॉडल है टू रिमूव डेडलॉक, इसके लिए ये जो प्रिंसिपल है ये यूज किया जाता है. पहले अगर कोई प्रोसेस अगर रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है तो करना चाहता है तो पहले रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए, फिर रिक्वेस्ट आ जाने के बाद उसको यूज करेगा, यूज करने के बाद फिर उसको रिलीज कर देगा. अगर ये मॉडल एग्जीक्यूट नहीं होता है तो डेडलॉक में कोई भी हम लोग एल्गोरिदम यूज करें तो डेडलॉक में हो जा सकता है. तो पहले रिक्वेस्ट करेगा कोई रिसोर्स के लिए, एंड देन इट यूज इट, आफ्टर यूजिंग इट ऑल्सो रिलीज. दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज फॉलोड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम in all the algorithms. Resource allocations graph. Resource allocations graph, it is a graph theoretic model of resource process and resource. इसमें वर्टिसेस को हम लोग प्रोसेस से डिक्लेयर करते हैं और एज को रिसोर्स से डिक्लेयर करते हैं. जैसे P1, P2, Pn set consist of process, और R1, R2 और Rm is called resources. Request edge, अगर मान लीजिए कि Pi एक प्रोसेस है, उसको वो Py प्रोसेस Rj रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो डायरेक्टेड एज हो जाएगा Pi टू Rj. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Pi टू Rj, मतलब ये हो गया कि Pi प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर Rj. इस तरह से मान लीजिए कि कोई रिसोर्स असाइंड किया हुआ है Pi को, तो Rj रिसोर्स इज असाइंड टू Pi, इट इज ए डायरेक्टेड एज. तो इस तरह से हम लोग रिक्वेस्ट एज और असाइनमेंट एज को रिप्रेजेंट करते हैं. प्रोसेस को हम लोग बेसिकली एक इलिप्स शेप में डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरह से ये देखिए प्रोसेस. रिसोर्स टाइप को हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिक्लेयर करते हैं, और ये जो 4 ब्लैक पॉइंट्स देख रहे हैं ये सब 4 इंस्टांसेस है. इसी तरह से Pi इज रिक्वेस्ट इंस्टांसेस फॉर Rj, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. और Pi इज होल्डिंग एन इंस्टांस ऑफ Rj, इसको इस तरह से डायरेक्टेड एज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. This is an example of resource allocation graph. Now here a process P1 is requesting for, in this resource allocation graph there is 4 resources. And resource R1 has 1 instance, resource
2 has 2 instance, resource 3 has 1 instance, and resource 4 has 3 instance. In this way, there is 3 process, P1, P2 and P3. Resource, one of the instance of R2 is allocated to P1 and one of the instance of R2 is allocated to P2. Now P1 requires resource R1 also, so P1 is waiting for the resource R1. Since it has only one resource, it is allotted to P2, so it is in waiting state. Again P2 is waiting for R3. P2 has only already occupied 2 resources, one from R1 and another from R2. Now P2 is waiting for the resource R3. It has only one instance, and the resource R3 is allocated to process P3. In this way, and resource R4 is not allocated to any of the process. If required, then it is allocated to any of the process. Now process P2 and P1 will not be completed till it does not get the resource of R1 and R3 respectively. Now P3 is allocated one resource, R3. So if it is completed, then it releases the resource R3, and then P2 will get the resource for its executions. After P2 executing, after utilizing the resources, P2 will release the resource R3, and in this way P2 complete its resource, executions. Since it is already holding R1 and already holding R2, after executing P2, it releases the resource R1 and R2. Hence P1 will get the resource R1. Hence P1 again completed its process. In this way, all processes will be completed and there will be no deadlock. Resource allocations graph with a deadlock. Now there is in the last example, if P3 is again need a resource of R2, and R2, one of the resources is allocated to P1 and one of the resource is allocated to P2. Hence the system will be in deadlock. No process will be completed. If P1 is needed for R1, R1 is holding for by P2, and in this way P2 is in need of R3 and R3 is allotted to P3, and P3 again need a resource of R2. In this way there is a circular wait situations. That means R2, P1, R3, P3 and R2. This is a circular waiting situations. In this graph, in this graph there is a one cycle that consists of R2, P2, R3, P3 and R2. In this way another cycle also exists, R2, P1, R1 and P2. This is not a cycle. Another cycle is not exist. One cycle only exists, that is R2, P2, R3, P3 and R2. So the principle is any cycle, if there exists any cycle in the graph, the situation will be in maybe in deadlock. That is, chance will be in deadlock situation. But it may be possible that the state is not in deadlock, but its chance the system will be in deadlock. The chance is possible.
In this example, another example, there is a cycle, but it is not in deadlock. How it is not deadlock? Now P1 in need of R1. R1 is allocated to P2. One of the resource of R1 is allocated to P2, and one of the resource of R1 is allocated to P3. And P3 is in need of R2, and R2 is allocated to P1. In this way, there is a cycle P1, R1, P3 and R2. This is a cycle. But here the resource, suppose that P4 executing, and it only need R2, so it perform its process operations and release the resource. So after releasing the resource is allocated to P3. Now P3 completes its process utilizing the resource R2, and hence it release the resource R1. After releasing the resource R1, P1 will make avail to the resource, and P1 execute its process and complete its process. Then it release the resource R2. In this way, there is no deadlock. All process complete its operations, and though there is a cycle, but there is no deadlock. Basic facts. In the subsequent graph, we see that if a graph contains no cycle, no deadlock. If the graph contains a cycle, if only one instances per resource type, then there will be a deadlock. If several instances per resources type, possibility of deadlock. तो इसका मतलब यह है कि कोई अगर साइकिल नहीं रहेगा तो डेडलॉक का कोई खतरा नहीं है. अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है और सब रिसोर्स का जो जितने भी रिसोर्स है उसका अगर इंस्टेंस एक ही है तो डेडलॉक का सिचुएशन आएगा. अगर सेवरल इंस्टांसेस है तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. Methods of handling deadlock. First is ensure that the system will never enter a deadlock state. इतना रिसोर्स रखा जाएगा कि वो डेडलॉक सिचुएशन में आएगा ही नहीं. Allow the system to enter a deadlock state and then recover. कोई डेडलॉक सिचुएशन में आ ही जाता है तो कोई प्रोसेस मान लीजिए कि एग्जीक्यूट कर रहा है और उसको कोई रिसोर्स चाहिए, तो बहुत देर तक अगर वो रिसोर्स नहीं मिलता है तो प्रोसेस को किल किया जा सकता है. लेकिन ये रिसोर्स कंज्यूम होगा, फिर से अगर वो प्रोसेस को हम लोग रिसोर्स एलोट करेंगे तो फिर से हमको रिसोर्सेस एलोकेट करने में टाइम लगेगा. इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक्स नेवर ऑकर इन द सिस्टम. जनरली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर इट इज आउट ऑफ स्कोप टू हैंडल द डेडलॉक ऑफ operating system, it is performed by the application program. तो ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर तो रिकवरी प्रॉब्लम जो है उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर छोड़ दिया जाता है. यूजर जब एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेगा तो उसी के थ्रू वो उसको सॉल्व करेगा. तो ये सब जो है ये यूनिक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है. This is an example of resource allocation graph. Now here a process P1 is requesting for in this resource allocation graph there is 4 resources. And resource R1 has 1 instance, resource 2 has 2 instance, resource 3 has 1 instance, and resource 4 has 3 instance. In this way there is 3 process P1, P2 and P3. Resource one of the instance of R2 is allocated to P1 and one of the instance of
R2 is allocated to P2. Now P1 requires resource R1 also. So P1 is waiting for the resource R1. Since it has only one resource, it is allotted to P2. So it is in waiting state. Again, P2 is waiting for R3. P2 has only already occupied two resources, one from R1 and another from R2. Now P2 is waiting for the resource R3. It has only one instance, and the resource R3 is allocated to process P3. In this way, and resource R4 is not allocated to any of the process. If required, then it is allocated to any of the process. Now process P2 and P1 will not be completed till it does not get the resource of R1 and R3 respectively. Now P3 is allocated one resource, R3. So if it is completed, then it releases the resource R3, and then P2 will get the resource for its executions. After P2 executing, after utilizing the resources, P2 will release the resource R3, and in this way P2 complete its executions. Since it is already holding R1 and already holding R2, after executing P2, it releases the resource R1 and R2. Hence P1 will get the resource R1. Hence P1 again completed its process. In this way, all processes will be completed and there will be no deadlock. Deadlock preventions continued. नेक्स्ट है थर्ड जो कंडीशंस थे वो था नो प्रीएम्पशंस. नो प्रीएम्पशंस को हम लोग अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकता है. इसमें क्या है कि अगर रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स अवेलेबल है, इफ देयर इज रिसोर्स रिक्वेस्ट and if it is available, then allot it to the process. Otherwise, if a process that is holding some resources request another resource that cannot be immediately allocated to it, then all resources currently being held are released. अगर मान लीजिए कि कोई रिसोर्स कोई प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है and wait and request for another resource, इसको इमीडिएटली एलोकेट नहीं करना होगा, इस प्रोसेस को वो रिसोर्स इमीडिएटली एलोकेट नहीं करना होगा. देन द रिसोर्सेज करेंटली बीइंग हेल्ड आर रिलीज्ड. इसको कुछ देर के लिए रोक के रखना होगा जब तक वो रिसोर्स जो कि प्रोसेस दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उस जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक उसको जो प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजा है उसको तब तक होल्ड करके रखना है, तब तक एलोकेट नहीं करना है. जैसे मान लीजिए कि P1 प्रोसेस R1 रिसोर्स को रिक्वेस्ट R1 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजा, तो R1 एलोटेड टू P2 प्रोसेस. अब P1 को तुरंत उसका चार्ज नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको एलोकेट नहीं किया जाएगा जब तक P2 प्रोसेस उसको कंप्लीट न कर ले, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंप्लीट न कर ले. जब P2 उसको कंप्लीट कर लेगा तब उसको एलोकेट किया जाएगा P1 प्रोसेस को. प्रीएम्प्ट रिसोर्सेस आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस फॉर व्हिच द प्रोसेस इज वेटिंग. अगर मान लीजिए कि उसको रिसोर्स मिला नहीं तो रिसोर्स या रिलीज कर दिया गया. मान लीजिए दो प्रोसेस है P1 एंड P2. P1 इज रिक्वेस्ट फॉर R1 and R1 is allotted to P2. Now
फोर्सफुली P2 से वो प्रोसेस ले लिया, वो रिसोर्स ले लिया गया और P1 को अलॉट किया गया। तो P2 प्रोसेस वेटिंग स्टेज में चला जाएगा और उसको रेडी क्यू के लिस्ट में पीछे उसको इंसर्ट किया जाएगा। प्रोसेस विल रिस्टार्टेड व्हेन only when it can regain its old resource as well as the new ones that it is requesting। जब P1 प्रोसेस, जैसे कि बोल रहे थे कि P1 प्रोसेस को R1 चाहिए, आफ्टर रिलीजिंग द प्रोसेस P2, R1 is allocated to P1, but P2 process is in waiting stage and inserted into the ready queue। अब P1 का एग्जीक्यूशन अगर खत्म हो गया तो P1 R1 को रिसोर्स को रिलीज कर देगा, तो उस समय P2 को फिर से वो रिसोर्स मिलेगा और वो भी रिसोर्स मिलेगा जो वो नया उसको रिसोर्स चाहिए, वो सारे मिल जाएगा। तो उसके बाद P2 पूरा टाइम उसको एग्जीक्यूट करके P2 भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। हाउ टू प्रिवेंट सर्कुलर वेट। इसमें क्या होगा कि इम्पोज ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप्स एंड रिक्वायर द ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट resource in an increasing order of enumerations। For this we define if functions, one-to-one functions from R to N, where N is a natural number। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 रिसोर्स है, 5 अलग अलग रिसोर्स है, अलग अलग रिसोर्स टाइप को एक नेचुरल नंबर से मैपिंग किया जाएगा। जैसे रिसोर्स R1 इज मैप टू 1, resource R2 is mapped to 2, resource R3 is mapped to 3, resource R4 is mapped to 4, and so on। That means each resource has a mapping, one-to-one mapping to a natural number। और ये natural number एक increasing order of enumerations में आएगा। मतलब enumerations मतलब calculations, न्यूमेरिक वैल्यू का एडिशंस के ऊपर, जैसे कि इंटीजर एडिशंस के ऊपर इंक्रीज किया जाएगा। जैसे 1 + 1 = 2, तो फर्स्ट जो रिसोर्स है उसको अगर 1 हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं तो सेकंड रिसोर्स को 2 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, थर्ड रिसोर्स को 3। इस तरह से ये जरूरी नहीं कि हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस और इंक्रीजिंग नेचुरल नंबर्स में रखें, इसको हम लोग रैंडम नंबर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक टेप ड्राइव है और एक डिस्क ड्राइव है और एक प्रिंटर है, 3 अलग अलग रिसोर्स है। टेप ड्राइव का जो एन्यूमरेशंस नंबर्स है 1, और डिस्क ड्राइव का 5 और प्रिंटर का 12। ये प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट ए रिसोर्स Rj if f of Rj is greater than f of Ri। जैसे कि यहाँ पे डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव का जो एन्यूमरेशंस नंबर है, डिस्क ड्राइव का ज्यादा है और टेप ड्राइव का कम है। अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर रिक्वेस्ट डिस्क ड्राइव के लिए भेजेगा और टेप ड्राइव के लिए भेजेगा, 2 अलग अलग रिसोर्स के लिए भेज रहा है, तो उसको डिस्क ड्राइव ही एलोकेट हो सकता है उस प्रोसेस को। इस तरह से जो कंडीशन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। मान लीजिए कि कोई भी अलग अलग प्रोसेस अलग अलग रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो किस तरह से इसे एलोकेट होगा। जो प्रोसेस कम रिक्वेस्ट, जिसका एन्यूमरेशंस नंबर कम है, जिसका नेचुरल नंबर कम है, वो सबसे उसका प्रायोरिटी कम होगा। जिसका ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 प्रोसेस अलग अलग 3 प्रोसेस अगर प्रिंटर, डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो पहले प्रिंटर एलोकेट होगा, उसके बाद डिस्क ड्राइव एलोकेट होगा, उसके बाद टेप ड्राइव एलोकेट होगा। ये अलग अलग प्रोसेस के लिए भी हो सकता है, सेम प्रोसेस के लिए भी हो सकता है।
इस तरह से अगर ट्रांजिटिविटी रूल हम लोग जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ट्रांजिटिविटी रूल अगर अप्लाई करेंगे तो FR0 इज लेस देन FR1 एंड इट इज लेस देन FR2। इस तरह से लास्ट में हो जाएगा FRN। अगर FRN तक, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, FRN तक अगर है तो ये तो ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये ठीक है। लेकिन अगर सर्कुलर वेट होगा, फिर से वो होल्ड एंड वेट के सिचुएशन में जा रहा है, तो FRN शुड लेस देन FR0 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये ट्रांजिटिविटी रूल को हम लोग अल्टीमेटली यूज करें तो लास्ट में हमको मिल रहा है FR0 इज लेस देन FR0, तो व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर this principle is applied to circular weight, and circular weight is not possible. In this way, this type of enumeration techniques can solve the circular weight conditions, and it prevents the deadlock. Summary, इसमें हम लोग देख चुके हैं कि डेडलॉक क्या है। डेडलॉक एक सिचुएशंस है जिसमें प्रोसेस और रिसोर्स एलोकेशंस, प्रोसेस अपना स्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाता है ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्स। हाउ डेडलॉक इज जनरेटेड ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। 4 कंडीशन है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशंस और सर्कुलर वेट। ये 4 कंडीशन से इसमें डेडलॉक जनरेट हो सकता है। रिसोर्स ग्राफ क्या है? रिसोर्स ग्राफ में हम लोग एक प्रोसेस को नोड के जैसा लेते हैं और एज को हम लोग रिसोर्स में लेते हैं। अगर प्रोसेस को जनरली हम लोग इलेक्ट्रिकल शेप में लिखते हैं और एज जो है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं। अगर उसमें अगर रिसोर्स का इंस्टांसेस है उसको स्मॉल डॉट्स में दिखाएंगे। ये डायरेक्टेड ग्राफ है। हाउ डेडलॉक इज प्रिवेंटेड, यहाँ पे हम लोग प्रिवेंशन टेक्निक्स देखे हैं। अगर 4 कंडीशंस को एलिमिनेट किया जाए तो हम लोग डेडलॉक का सिचुएशन खत्म कर सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल भी लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अगर हम लोग इमेजिन करेंगे तो डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।